but before you, sometimes I get excited क्योंकि ये जो virtual world है, this has allowed me to get in touch with people that I have not been in touch with for decades. दशक हो चुके हैं. And she's such a brilliant performer. And she was like a volcano about 10 years back, waiting to erupt. And now she's erupted in all mediums. And I'm so excited because with Mimi, we get to see another side of Sahit Amankar. Thank you so much for joining me. Pleasure. Finally, I'm here. I'm so happy. How are you? I'm good, but I'm so happy to see you doing so well. You've become not just a star, you're just a great performer now, yaar. And earlier also you were, but it just looks like now you're enjoying yourself. Thank you so much. Well, I think yes, I am in a good space. It feels nice. It feels assuring. When you are praised, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है. अरे पिक्चर भी देख के आए हैं. I have to say first of all congratulations Mimi. Thank you so much. और क्रेजी पार्ट ये कि ये फर्स्ट टाइम मैंने मेरे ख्याल से लाइव में सुबह 6:15 बजे पिक्चर देखी है. और मैं so because I go to work in the morning also and I think I appreciate films in a different way. अभी पहले क्या होता था ना, जब आप सिर्फ फिल्म्स को एज ए फिल्म देख रहे हो और क्रिटिकल एस्पेक्ट से देख रहे हो, you sort of tend to over criticize and over analyze. अब now because I think pandemic की वजह से we've all been so far away from a theater, रोक के देख सकते हैं and all. I think I really found the film very sensitive to a certain extent. Plus I have 2 kids also now. तो आंसू निकला एंड में, है ना? Yes, yes. तो I'm not revealing too much in the film, but were you also like, obviously you must be really happy with the feedback that you've got na so far? Yes, I think मतलब कोई एक बंदे से ऐसी केमिस्ट्री या ऐसा सब कुछ माहौल जम के नहीं आता. इट्स अ टीम वर्क. और आई थिंक एवरी एक्टर इन एवरी फ्रेम हैज परफॉर्म्ड सो वेल कि सारों सबके परफॉर्मेंसेस एलिवेट हो गए. सो इट इज जस्ट so nice to be a part of a film which has its heart in a correct place. But sometimes when I think you become such a big star in regional cinema also, in Marathi cinema you become such a superstar also. Does it sometimes become difficult to adjust back to हिंदी सिनेमा एंड देन गो बैक इनटू मराठी सिनेमा आल्सो? टेलीविजन में ऐसे पहले होता था, अगर आपने फिल्म करके वापस टीवी में आ गए ना, अरे सर आप तो अब फिल्म स्टार बन गए हैं, फिल्म एक्टर बन गए हैं. ऐसे रीजनल सिनेमा दैट is sort of, I feel sometimes superior. I've been watching a lot of Tamil cinema, I've been watching a lot of Malayalam cinema. I'm seeing the storylines are fantastic. Hero driven, heroine driven नहीं है, concept driven stories आ रही है. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देख के. So are you noticing that there is a shift, या फिर सारे worlds जो है वो एक साथ बनते जा रहे हैं? I think the lines have blurred big time. और अभी ऐसा रहा नहीं कि lot of Tamil actors are working in Hindi films, lot of Marathi actors are working in Tamil films, Hindi films. ये बढ़ रहा है and I think it's a wonderful sign. We need collaborations, we need amazing collaborations because we have amazing people around us in our fraternity. मतलब इंडियन सिनेमा पैन इंडिया देखा जाए तो कितने सारे लोग हैं जो इतने टैलेंटेड है, उनको एक साथ आना ही चाहिए. and it's a very, I think it's a very great sign. हाँ बिल्कुल, and this sign is only starting. The OTT has been a big explosion for this यार. इससे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत advantages हो चुका है ये position. So let's talk about मिली कैसे आपको ये picture? When I was seeing, I see. So Kriti, for me, I was a little skeptical. Can she pull this off? And she's always tried to do something different. बरेली की बर्फी में भी कोशिश की थी because she's fighting the I am very pretty syndrome. कई बार वो उसको ना वही टाइप के जोन में कास्ट करते रह जाएंगे. So she's always fighting that. But I was so surprised to see you there and pleasantly surprised. So happy to see you in the film. How did that happen? As you correctly said, मुझे ऐसे लगता है कि हम बहुत जल्दी किसी को बोल देते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही रोल्स करते हैं. वैसी स्क्रिप्ट आनी भी चाहिए. ऐसी स्क्रिप्ट. मिमी इज एन अनयूजुअल स्क्रिप्ट फॉर मी. Such scripts don't come to you often. मतलब ये सोने पे सुहागा, ये मोहरत होता है एक, तो ये मोहरत वाली फिल्म थी, ऐसा मेरा मानना है. एंड आई थिंक ऑडिशन करी मैंने. वो ऑडिशन पहले रिजेक्ट हो गई थी, फिर मुझे फोन आया, फिर आई बिकेम अ पार्ट ऑफ इट. आई एम जस्ट ग्लैड दैट लैंग्वेज वाइज, एक्सेंट वाइज एक यूनिट लगता है. कोई भी ऐसे ऑफ या ऑड मैन आउट नहीं लगा. आई थिंक दैट्स द सक्सेस of such a stellar cast and
the feel and the flavors each one of us have gotten into the film, I think. You said your audition was rejected first. Really? Wow. See, these days, Salil, what I've observed is it's not when such things happen, it's not about your acting capabilities Yeah, or yeah, yeah. capacities. You have to fit so well in that The role. look. Yeah. और ना बहुत ज्यादा लोग, मतलब मैंने देखा है कि अगर आप महाराष्ट्रियन हो, आपकी मदर टंग मराठी है, तो आप मराठी फैमिली का पार्ट होगा तो आपको ज्यादा अप्रोच किया जाएगा. And Mimi was such a great opportunity for me to break that, क्योंकि यहाँ Yeah. पे I play a Muslim girl. I Yes. have that thick Rajasthani accent to my Hindi/Urdu. So it was fun exploring such spaces, and I was pleasantly surprised when I heard myself. क्योंकि मैंने कभी किया नहीं, और मुझे ऐसे लगा कि हाँ भाई कन्विंसिंग लग रहा है, तो मुझे ही मजा आ गया. So बहुत सालों बाद मुझे ही खुद का कुछ देख के मजा आया. दैट मीन्स कुछ तो सही हो रहा है. नहीं, बहुत सही हो रहा है. इनफैक्ट ये सब्जेक्ट ही एक्चुअली बहुत ज्यादा, आई वुड से वेरी फॉरवर्ड इन इंडिया यार. सरोगेसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, बट सबको लगा था कि ट्रेलर में सब दिखा दिया और पिक्चर तो अलग ही है. तो ये मिसकंसेप्शन लेके बहुत सारे लोग आए थे, अरे इसमें क्या है, ये तो फिर चले गए. So the sensitivity of the second half, because I was not watching in the theater, but it really builds up beautifully in the second half, and there's a complete story. When you were hearing the narration, तुम लोगों को लगा था कि ये ट्रेलर देखकर भी आपको लगा ऐसे कि ओहो, I think too much has been revealed? No, not at all, because we've shot the film and हमको पता है कि कितनी eventful film है, इसमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या emotions explore होने वाले. It's a roller coaster ride. So I think but that was the reaction पहले जब ट्रेलर आया था, बहुत सारे लोगों का ये रिएक्शन था. हाँ था, पर that kept us very curious, कि अच्छा अब देखो मजा की अलग ही है. You'll get lot of surprises. So we were also waiting for people to watch the film very badly, and I'm glad it happened earlier. So yeah. हाँ, थोड़ा जल्दी हो गया. बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू रिसीव्ड सेट पर क्या होता है ना, वो व्हेन यू गो ऑन अ सेट, और चाहे कोई भी सेट हो, जब डायरेक्टर को अच्छा बोल देते हैं, या फिर आप, पंकज त्रिपाठी इज अ लवली अंडरस्टेटेड एक्टर आल्सो, ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गाय, और अलग ही उनके क्वर्क्स रहते हैं, विद यू आल्सो देयर इज लॉट्स ऑफ मोमेंट्स इन देयर. व्हाट द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू रिसीव फ्रॉम द कास्ट एंड क्रू when you were finishing a performance, because you also come with baggage. अरे ये साई मराठी सुपरस्टार वो भी आई है, अरे ऑफ कोर्स सब ऐसा बैगेज लेके आ रही, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसा. कृति भी अलग ट्राई कर रही है. तो सेट का बताओ यार, who was like super convinced, like who was surprised कि अरे वाह बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है. नहीं, आई थिंक यहाँ पे कोई बैगेज लेके नहीं आया था, इसीलिए सबने इतनी खुल के इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है. Nobody is trying to overshadow anybody. Everybody has complimented to the story, and they've just मतलब become the characters, ऐसा मुझे लगता है. और this is a plus point. I think this is a strength of our team. And पंकज जी, obviously being an actor, मुझे पंकज जी के साथ काम किसको नहीं करना होता है, मुझे भी करना था. पंकज जी ने मुझे एक सीन के बाद, हमारा जो टैक्सी वाला सीन है, उसके बाद मुझे बोला था आपकी आंखें बहुत बोलती हैं. तो मैंने कहा था थैंक यू जी. मतलब दिन बन गया मेरा कि सच स्टेलर एक्टर्स, इतना एक्सपीरियंस है, इतनी बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स उन्होंने शोल्डर करी है. सो आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. ऑलराइट, टाइम फॉर अ छोटा सा ब्रेक. साई तावड़कर विद मी. She redefined Marathi cinema, made it glamorized. Before Sai, there was nothing called glamorous in Marathi cinema, and big money also came in. And now, so happy to see her in this really big budgeted, big show, big film rather, Mimi with Kriti Sanon and Pankaj Tripathi. And वापस और बातें करेंगे. Come right back. You're back with me on B4U, and of course Mimi, it's out. Netflix पर है, and it's come out a few days earlier because piracy थोड़ी सी हो गई थी, so they released it out earlier. You should definitely go and watch. It's a very very sensitive film and really heartfelt. अगर थिएटर में होती, second half, after the interval would have been really shocking for most people. And I've got Sai Tamadkar with me, of course, who plays one of the most vital characters. She actually, to explain to people, is the best friend of Kriti Sanon, who then suddenly becomes mother and other things to her.
so that Kriti can have the surrogate baby. That's all I can reveal. Sai, thanks again for joining me. You know, but I'm very disappointed, unfortunately, that both of you, both Kriti, you are now Pankaj also. Everyone seems on a massive health drive also. तुम इतनी ज्यादा सुपर फिट हो गई हो, कृति तो है ही सुपर फिट, पंकज जी ऑल्सो इज लुकिंग स्टार्टिंग टू लुक वेरी फिट ऑल्सो. मुझे क्या लगता है कि जो नॉर्मल खाना हो सकता था सेट पर बिल्कुल नहीं हुआ होगा. यहां तो कृति ठीक है, एक्सक्यूज टू पुट ऑन सम वेट, तो थोड़ा एक्स्ट्रा खाया होगा, बट यू तो आर 20 पैक, और पंकज जी ऑल्सो मुझे लगता है 6 पैक बहुत जल्दी आ जाएगा. तो ये वैसा टाइप का सेट नहीं था ना खाने का. बेशक तुम राजस्थान या कहीं पे भी शूटिंग कर रहे हो, मुझे लगता है कि खाना तो कहीं और से आ रहा था, बंबई से, प्लेन से, है ना? नहीं नहीं, मैं तो बहुत सीधी सादी जेवाला काय पाहिजे पोळी भाजी बोलने वाली लड़की हूँ, तो मैं बहुत इजीली अडेप्ट कर लेती हूँ. और ऐसा कुछ नहीं, थैंकफुली आई वाज इन अ ग्रेट शेप व्हेन द मूवी हैपेंड. जनरली मेरा निशाना हमेशा थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है, पर इस बार सही बैठा है और मैं बहुत खुश हूँ कि सही बैठा है. हाउ डज यू नो क्या हो जाता है, एक कॉलिंग कार्ड बन जाता है जब बहुत बढ़िया एक पिक्चर आ जाती है, यू आर सुपर एक्साइटेड, यू वांट टू मीट एवरीवन. ना कोविड डजंट अलाउ यू टू मीट एवरीबॉडी आल्सो. तो क्या हो जाता है, आई थिंक द वे ऑफ फंक्शनिंग पिछले 1-1.5 साल से बहुत चेंज हो गया है. यस, बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत शोज आ रहे हैं, बट आई ऑल्सो फील अपॉर्चुनिटीज क्या है ना, चेंज भी हो रही है. आई मीट सो मेनी प्रोड्यूसर्स ऐसे करना तो बहुत कुछ चाहते हैं यार, लेकिन कोई एक्चुअली हाथ डालने को तैयार नहीं हो रहा, सब इंतजार कर रहे हैं. As an actor, the last 1.5 years, how has it been for you? It's been bumpy, of course, but more than what, going out and working, it's been bumpy here. So I think, listen man, मतलब human being is a very, बहुत ढीठ है हम लोग. हम किसी भी चीज पे we will have a solution मिला नहीं तो हम झगड़ के लड़ के किसी भी तरह से अचीव कर लेंगे, ये हमको पता है. बस वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, एंड वी आर नॉट यूज्ड टू दिस सेटअप कि घर पे रहो, बाहर मत जाओ. एंड हम तो मतलब ड्रामेटिक, वी इंडियंस आर वेरी ड्रामेटिक, नो. Of course. वी, आई मीन, एक हग जब तक झप्पी नहीं लगाते हो किसी को तो मिलने का फील ही नहीं आता है, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है. एंड आई थिंक वी ऑल हैव बीन फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग विद इट, पर ये दिस इज गोइंग टू गेट ओवर. और बट यू नो मुझे लगता है कि थोड़ी सी डेस्परेशन बढ़ भी चुकी है बहुत लोगों में. यू नो व्हेन यू गॉट समथिंग नाइस कम आउट, हैपेंस टू मी आल्सो, यू गॉट समथिंग रियली नाइस प्रोजेक्ट दैट जस्ट कम आउट, शायद सारे लोगों ने ऑनलाइन देखा नहीं है, सो आई हैव एन अर्जेंसी टू वांट टू सेंड 1000 व्हाट्सएप्स, बट आई एम नॉट. लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, कई बार क्या होता है कि दे एक्चुअली मिस इट. सो नाउ यू आर इन अ जोन वेयर यू वांट एवरीवन टू सॉर्ट ऑफ मीट यू राइट नाउ. Are you one of those people that will send WhatsApps to people saying, देखी कि नहीं पिक्चर? नो. नो. Really? मतलब मेरे कोर ग्रुप हैं, 4 लोग हैं, उनको मैं जरूर जरूर भेजूंगी, लेकिन किसी ग्रुप पे व्हाट्सएप करना कि ये देख. नहीं, डायरेक्टर्स को सपोज, सर बाय द वे हाउ यू डूइंग यार, पिक्चर देखी मेरी? आर यू वन ऑफ दोस पीपल? थैंक यू, मैंने कभी किया नहीं है ये. आई विल डू दिस, Really? थैंक यू वेरी मच. नो. बट व्हाई? बिकॉज़ यू हैड टू मच वर्क, दैट्स व्हाई. शायद जरूरत नहीं पड़ी कभी. No, I never looked at it this way. मतलब I have messaged directors saying, "Hi, I do exist and कुछ हो तो बताना." But I've never done this कि ये देखिए और you know. क्योंकि पहले लिंक नहीं होता था ना, सही, पहले लिंक नहीं होता था, पहले बोलते थे कि टिकट भेजनी पड़ेगी. नाउ यू जस्ट सेंड द लिंक ऑफ द शो ऑफ द फिल्म यार, सिंपल, इजी टू वॉच. Thanks. How is the transition happening, you know, as far as you know, I've seen such growth in Marathi cinema also, you know, and scale wise, you've got Samantar also running around right now, which is doing so well also. So it's almost like you've got multiple releases at the same time. You must really be enjoying this time. मतलब कि लोग बोलते हैं ना कि वो जब भगवान देता तो छप्पड़ फाड़ के देता है. क्या अभी वो समय आ गया तुम्हारी लाइफ में? It definitely feels amazing. But I am not somebody who will linger in that moment and stay there, chill for a while. मैं बहुत जल्दी फटाक से काम पे लग जाती हूँ. I just मतलब जिस दिन मैंने पिक्चर देख ली अपनी ट्रायल पे, that day I am out of that film. ऐसा मेरा हो चुका है, मतलब it's autopilot now. So I think
जो हो रहा है, these are exciting times, amazing times. It feels worth the wait वाला feel होता है, वो है. पर उसके अलावा I think उतना ही है यार, मतलब. But you could have become a producer also to make the kind of cinema and the kind of series that you only want to do. इतने सारे एक्टर्स ये कर जाते हैं इवन हिंदी में. बिकॉज क्या होता है कि देयर इज अ कनेक्शन दैट इज देयर विथ इवन द नेटफ्लिक्सेस ऑफ द वर्ल्ड एंड द बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड. Why haven't you considered that? आजकल मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको अगर काम जो चाहते वो नहीं मिल रहा है. जैसे हमारी शुरुआत में डिस्कशन ही हुई थी, जस्ट स्क्रिप्ट्स दैट यू वांट, दे आर एबल टू डू इट. और आजकल तो चैनल बोलते हैं अगर एक्टर है तो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट. It is a good, I mean, this is a good way to create something for yourself. Right. मुझे ये imbibe करने में शायद time लगेगा, because मुझे I don't have compartments to mentally, मुझे वो समझ click नहीं होता है, you know, probably because I am like that. Also, I think if there's going to be anything parallel that I want to do, I don't want it to be connected to films or what I've been doing. Really? Yeah, so So what are your interests? चलो जानते हैं. क्या क्लाउड किचन खुलने वाला है, या फिर बिकॉज यू आर सो इनटू फिटनेस आल्सो कभी चेन ऑफ जिम्स ये खोल सकता है? related to food हो सकता है, because I love throwing parties and I love making people eat मेरे हाथ का बना हुआ खाना. Yeah, so yeah, something in food maybe, I don't know, it's a very vague अभी तक. But this is amazing. I really thought by now, क्योंकि you've done so many films, I would have thought कि अभी तक already production house चालू होगी भैया, जो नॉन स्टॉप फिल्में बनती जा रही है. उसके पैतरे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं यार, पता नहीं, अभी तो कोई ख्याल नहीं है. यार एक दिन मैं तुमसे मिलूंगा बहुत जल्द. ये वाला जो मैथमेटिकल पार्टनरशिप है ना, मैं तुम्हारे लिए करवाऊंगा 100%. Lots of things that people are going to be looking forward to also now. You know, it's not like they say कि kitty में क्या है, but what are you projecting now? You know, is there now you wanted to do an OTT or certain kind of roles that you want? Like, what is it that the Indian audiences में Marathi is seen you in so many different avatars. बॉलीवुड का प्योर बॉलीवुड का ना मायोपिक विजन होता है अगर इनको ऐसे देखा है. What's the kind of the kind of roles that you're looking for specifically that really will excite you right now? I've been consistently trying to be significantly different in every film. If you see Hunter, if you Yeah. see Love Sonia, and I think that's why such big gaps and intervals. Because once you do, आप एक बार कर लेते हो Hunter के बाद मुझे बहुत सारे similar roles है. So I don't want to. What's the fun in doing the same thing again and again? So But इतना लंबा गैप कई बार क्या होता है, you say I'll do one more of this and plus one of that, one of this and one of that. A lot of people also will sign it up and keep the balance, normal. of course, मतलब मेरे लिए OTT करना है या थिएटर, ये सवाल है ही नहीं. काम है. मैं Correct. सब कुछ करना चाहती हूँ. मैं I want to be seen everywhere. मेरी यही ख्वाहिश है हर एक एक्टर की तरह कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरा परफॉर्मेंस देखिए, obviously. So yeah, I will keep tapping unknown territories, keep exploring untasted, untraveled paths. But does it become difficult ever for you? Like, was maybe slightly difficult accent-wise, or when you were performing, you वो key ढूंढने के लिए for a performer? I think that kind of training and the kind of people we had on our team were amazing. मतलब ये सब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी. इतना सुंदर उन्होंने हमको प्रिपेयर करके भेजा. अच्छा, you had workshops before this? Yes, I did learn उर्दू की क्लासेस करी मैंने. खैर आप कोई लैंग्वेज ऐसी 7-8 दिन में सीख नहीं सकते हो, 15 दिन में सीख नहीं सकते हो, बट Correct. जितना आपके काम के लिए कन्विंसिंग लगना चाहिए, लग सकता है, उतना मैंने किया. एंड वी हैड अ डायलेक्ट कोच आल्सो. जेडी नाम का एक बहुत ही यंग सा लड़का था, उन्होंने हमारी डायलेक्ट कोचिंग करी. सो या, इट वाज अनबिलीवेबल. मतलब I told you, when I heard myself, I was like, wow, जमला की. पहला रिएक्शन क्या था, but when you saw the film, लोग बोलते ना कि as a performer पता होता ना कि whether I've nailed it or not, and I've seen your reactions.
ऐसे खुद के बारे में ओह नो आई Of हैव course. नेल्ड इट पता लगता है कि हाँ, जितना मेरे को दिया था उतना तो मैंने 100% कर दिया. Did you feel like that when you saw the film first cut? ऑनेस्टली मैं यही एक चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड या सरप्राइज हूँ कि मेरी लैंग्वेज और मेरा डायलेक्ट वो बहुत सही मुझे बहुत पसंद आया बाकी तो मतलब आई डोंट नो यार ऐसा ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मतलब हाँ हाँ अंदर ही मैं अंदर बहुत पता अच्छा होता है काम सही. अंदर ही अंदर पता होता है कि चीटिंग listen किया है but कि नहीं I की can थी. tell no I can tell you no I never cheat I try not to cheat please हाँ. मैंने कोशिश मतलब एक जरूर बोलूंगी कि इतने सारे अच्छे लोग हैं ना तो उनके साथ काम करते वक्त आप डबल फायर्ड अप रहते हो हमेशा that did happen and that I think that shows who surprised you the most, not performance wise but off, जब when it's cut उसके बाद किसका बिल्कुल जो रवैया था अलग ही था compared to what you had thought on the whole set? I think मेरा यार आई डोंट नो मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है पर नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, दे नॉट एबल टू स्विच ऑफ द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर के अंदर ही घुसे रहते हैं. सो समटाइम्स व्हेन यू मीट लाइक फरहान अख्तर, वो जब तक रात को पैकअप शायद नहीं होगा, अगले दिन ना जाओ ना, तब तक वो कैरेक्टर में घुसे रहेंगे. आई थिंक मनोज जी इज वेरी इंटरेस्टिंग बहुत He's so ही funny, man. मजेदार पर्सनालिटी है वो और Yeah. कुछ मोमेंट्स उन्होंने जो क्रिएट किए हैं स्क्रीन पे He's so माइंड funny. ब्लोइंग उनकी पहली एड से ही मुझे याद है जब वो मर रहे होते थे ना, वो जो टपकता है पानी, तब से मैं उनका इतना बड़ा फैन हूं मनोज पावा जी का. ही इज सो फनी मैन. I think the whole ensemble was brilliant, Sai, and I'm so happy. I'm so happy that you're part of a lovely big setup and a big setup that can make a lot of bigger films also. और ये setup ऐसा है जो repeat बहुत करता है. और I think मुझे इसी बात की खुशी है कि you're in the right setup and it works really well. Thanks for joining me and seeing you after so many years. Actually, I've actually seen you in person like this after so many years. I'm loving it. That's true. That's true. It's been a Congratulations very on long. it. Thank you. और मला बोलायला लावलंस तू म्हणजे मी बोलतं केलंस मला तू न कळत ती क्वालिटी आहेच तुझ्यामध्ये बहुत सारा कुछ उगलवाया अभी आपने ये तो कुछ भी नहीं है. कैंडीड हमेशा की तरह बट दिस इज नथिंग. अभी तो मैं थोड़ी देर में बहुत जल्द दोबारा मिलने वाला हूं, तब उगलवाऊंगा मैं तुमसे. अभी तो कुछ नहीं है. थैंक यू सो मच साई. या यू आर द बेस्ट एट इट बाय टेक केयर थैंक यू सो मच बाबा. टेक केयर. Bye. थैंक यू. टेक केयर. और बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू से सच लवली थिंग्स. बट ऑफ कोर्स दैट वाज साई तामड़कर. Lots and lots of things that people will have to see once they see the film. Go watch Mimi. It really is a tearjerker. And yeah, I had a tear in my eye because they really managed to touch the right chords. I'll see you soon. Take care and bye-bye on Star Stop.